as we have seen, the energy which we are providing to this ice is absorbed by ice and used in the following function, that its particles start vibrating. This is in the form of the kinetic energy, and the particles overcomes the force of attraction, and they start moving more freely, and solid melts and convert to liquid, though there is not any rise in the temperature of the thermometer. It is still in the zero position. So this is the energy in the hidden form. Hidden means छिपा हुआ. ये सारे काम हो रहे हैं पर ये थर्मामीटर उसे नहीं दिखा पा रहा है, जिसे हम हिडन कहते हैं, छिपी हुई. In chemistry it is used, the term is latent energy. So the temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called melting point. So what is the melting point indicates? It indicates strength of the force of attraction between the particles. So melting point of ice is 273 Kelvin, that is 0 degrees Celsius. The process of melting, that is change of solid state into liquid state, it is known as fusion, and the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. So one question is there which is very important also to understand this concept. So why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? मीन्स अगर आप कहीं जल जाते हैं तो आपको डॉक्टर ये क्यों एडवाइस करते हैं कि आप उस जगह पर बर्फ़ लगाएं, बनिस्बत ठंडा पानी डालने से ज़्यादा असर बर्फ़ करेगी, क्योंकि पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री, दैट इज़ 273 Kelvin, have more energy as compared to the particles in the ice at the same temperature. क्योंकि ये ठंडे पानी में 0 डिग्री सेल्सियस में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इस फॉर्म की एनर्जी इसमें छिपी हुई है जो कि आइस में नहीं है, इसलिए आइस ज़्यादा इफ़ेक्टिवली किसी भी बर्न एरिया को ठीक कर सकता है. We are going to see our next experiment, that is conversion of water to water vapor. Again we have to make an arrangement: iron stand, tripod stand, Bunsen burner, beaker containing water, thermometer and glass stirrer. When we supply heat energy to water, particles start moving faster. At certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. So boiling point of water is equal to 373 Kelvin is equal to 100 degree Celsius. It means जब हम इस वाटर को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है और धीरे धीरे हम थर्मामीटर में पाएंगे कि उसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है तो वो उससे ज़्यादा और टेम्परेचर नहीं बढ़ता है और पानी उबलने लगता है. इसका मतलब है जो भी एनर्जी हम उसके बाद भी देते जा रहे हैं, उस एनर्जी को ये लिक्विड के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करके उसकी अपर सरफेस को छोड़ करके वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ रहे हैं. इस वाटर वेपर फॉर्म या फिर स्टीम के फॉर्म में ये जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ये वही हिडन एनर्जी है, छिपी हुई एनर्जी है, जिसे हम लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a liquid into vapors at atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. Very important question is here: what produces more severe burns, boiling water or steam?
Answer is steam, because steam is having hidden energy, that is latent heat of vaporization. It means अगर आपसे पूछा जाएगा कि उबलते पानी से आप ज़्यादा जलेंगे या फिर रोटी की जो वाटर वेपर उससे आप ज़्यादा जलेंगे, तो आंसर होगा उस स्टीम से जो चपाती से निकल रही है, क्योंकि उसके पास है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. नाउ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में ही हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन, it is a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state or vice versa. जैसे you might have seen your mother using naphthalene balls to protect woolen garments from moth. Okay, so इस तरह से हम एक inverted funnel लेंगे. कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, जैसे नैफ्थलीन बॉल्स, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर जिसे हम कपूर कहते हैं, आयोडीन. और इस चाइना डिश में हम ले करके ऊपर पे कॉटन लगा देते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज एंड बुनसेन बर्नर. जब हम हीट करेंगे तो हम पाएंगे कि अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने लगता है. ये लिक्विड स्टेट में नहीं जाता है. इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. और जब हम इसका बर्नर बंद कर देंगे तो हम पाएंगे कि ये फिर से गैस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. इसे हम डिपोजिशन कहते हैं. वी आर गोइंग टू सी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. फॉर दिस, when we will take a cylinder and a piston, you can see these are the particles of gas, and when we move piston we can observe that particles are coming close to each other, and again when we will apply more pressure, जब हम और ज़्यादा दबाव बनाएंगे तो ये particles और भी ज़्यादा पास आ जाते हैं. So by applying pressure, particles of matter can be brought close together. So by applying pressure and reducing temperature, we can liquefy gas. So we are going to see the next, solid carbon dioxide, which we call dry ice, that is stored under high pressure. Solid carbon dioxide gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This means solid carbon dioxide is called dry ice. We are going to see the next topic, evaporation. Let us see what is actually the main difference between evaporation and boiling. Evaporation is phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point. इवापोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सारे टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे के सारे टेम्परेचर में. जैसे अगर हम कपड़े को बाहर फैलाते हैं सूखने के लिए तो वो उसका पानी इवापोरेट होता है और कपड़े सूखने लग जाते हैं. इवापोरेशन एंड बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है? इवापोरेशन ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बट बॉइलिंग पॉइंट इज़ फिक्स्ड फॉर द सब्सटेंस. जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है. लेट अस सी फैक्टर्स क्या है जो कि इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं. जैसे इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन इज सपोज व्हेन you are asked to dry the cloth, if you will spread the cloth, अगर आपसे कहा गया कपड़े को सुखाने के लिए अगर आप कपड़े को फैलाकर तार में टांगेंगे, फैलाएंगे तो कपड़ा जल्दी सूखेगा. अगर आप फोल्ड करके तार में रख देंगे तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा यानी एक्सपोजर एयर में उसको उतना ही ज़्यादा होगा और वो जल्दी सूखेगा. Increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into vapor state. Means
अगर गर्मी के दिनों में हम कपड़े फैलाते हैं तो जल्दी सूखते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर उस वाटर को काइनेटिक एनर्जी देता है और इस काइनेटिक एनर्जी को पा कर के वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी टेम्परेचर ज़्यादा तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे आपको पता है बारिश के दिनों में कपड़े नहीं सूखते हैं आसानी से, इसलिए हमें उन्हें पंखे के नीचे डालना पड़ता है। या क्यों नहीं सूखते हैं? क्योंकि उस वक्त एटमॉस्फेयर में नमी रहती है। नमी मीन्स ह्यूमिडिटी। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. So the air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. So अगर नमी कम होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे। इवापोरेशन की प्रोसेस ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, कपड़े कम सूखेंगे, टाइम लगेगा उन्हें सूखने में। If amount of water in air is already high, so rate of evaporation decreases. नेक्स्ट इज़ एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। मीन्स अगर हवा चलेगी तब भी कपड़े जल्दी सूखेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विथ विंड, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन सराउंडिंग। इसीलिए जब कपड़े नहीं सूखते हैं तब हम पंखे के नीचे कपड़े फैला देते हैं, ताकि ये विंड स्पीड जो भी हवा इसके कांटेक्ट में आए वो वाटर वेपर को लेकर उड़ जाए और नई हवा उसके कांटेक्ट में आए। इस तरह से कपड़े सूख जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड मेक सराउंडिंग कूल। मीन्स आपको पता है कि इवापोरेशन जब होती है तो ठंडक आती है। ये किस तरह से आती है? देखिए, व्हेन वी पोर सम एसीटोन, एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर में जो केमिकल है उसको हम एसीटोन कहते हैं। अगर हम अपने पाम में, अपने हाथ में हम उसको ले लेते हैं तो हम पाएंगे कि हमें हमारे पाम में, हथेली में ठंडक लग रही है। इसकी वजह है क्योंकि जो एसीटोन है वो आसपास की सराउंडिंग की एनर्जी ले लेता है और हमारी बॉडी की भी पाम से एनर्जी ले लेता है और वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने सराउंडिंग से लिया है या हमारे पाम से लिया है, उतनी ही ठंडक हमें महसूस होगी। एंड इवापोरेट, व्हेन दिस एसीटोन विल इवापोरेट, इट विल कॉज कूलिंग। जैसे और भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ और ओपन ग्राउंड। जब बहुत गर्मी रहती है तो हम घर के बाहर मिट्टी में या फिर छत में पानी छिड़कते हैं, क्योंकि हमें पता अगर हम पानी डालेंगे तो हमें ठंडक लगेगी। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लार्ज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। जो भी पानी हम ग्राउंड में या छत में डालते हैं वो पानी वहाँ की गर्माहट को सोख लेता है और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। उस एनर्जी का नाम है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और जितनी अमाउंट ऑफ उसने गर्माहट सोखी है उतनी ही ठंडक वो हमें दे जाता है। वाई डू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? इसका भी आंसर सेम है, इवापोरेशन। बिकॉज our skin has sweat gland that you know which secrete sweat. So this is a biological process that in order to control our body temperature, जब हमारी बॉडी गर्मी में बहुत गर्म हो जाती है तब स्वेट ग्लैंड पसीना निकालता है, स्वेट निकालता है। ये पसीना हमारे बॉडी का टेम्परेचर प्लस हमारी सराउंडिंग से एनर्जी ले करके लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करके ये गैस में, दैट इज़ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और जितनी हीट उसने एब्जॉर्ब करी है उतनी ही हमें कूलनेस मिलती है। और ऑब्वियसली कॉटन
क्लोथ ये भी स्वेट को आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें ठंडक देता है. We see water droplets on the surface of glass containing ice cold water. जब हम बीकर या ग्लास में बर्फ़ रखते हैं तो हम पाएंगे इसकी ग्लास की आउटर सरफेस में पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं. दैट इज़ वाटर ड्रॉपलेट्स. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी. यानी आपको पता है कि वाटर वेपर इस एयर में है, ये जब कोई भी ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो अपनी एनर्जी को खो देती है और एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स. एंड इट मीन्स वी हैव completed solid, liquid and gas. The next fourth state is also given in your textbook, that is plasma. So what is plasma? It is a state consists of super energetic and super excited particles. The particles are in form of ionized gas. Inside neon sign bulb there is a neon gas, and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas. So plasma is consisting of super energetic and excited particles in the ionized form. The plasma glows with a special color. So sun and the stars glow because of presence of plasma in them. Next state, fifth state is also given, Bose-Einstein condensate, which we call BEC, is formed by cooling a gas extremely to low density, about 100,000 density of normal air, to super low temperature. So this is also a state, fifth state, Bose-Einstein condensate, in which cooling is done.